بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہمارا موضوع ہے ہائپوتھائرائڈزم، تھائرائڈ ہارمونز کی پیداوار میں کمی اور اس کے اثرات پر بات کریں گے، اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر۔ ہائپوتھائرائڈزم کے ہارمونز کی جو کمی ہے اس کے لیے ہمیں بتائیں کچھ۔ جی، تھائرائڈ ہارمونز کی پیداوار میں کمی کو ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں۔ اب تھائرائڈ کے ہارمونز جیسا کہ پیدا ہوتے ہیں دماغ میں ہائپوتھیلیمس یعنی دماغ کے سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے موجودہ حالات کے مطابق دماغ سے جو بھی فیصلے احکامات آتے ہیں وہ سارے تقریباً ہائپوتھیلیمس سے آتے ہیں۔ تو ہائپوتھیلیمس کے ساتھ جڑا ہوا ہے پیچوٹری گلینڈ، وہ کنٹرول کرتا ہے اس کا ٹی ایس ایچ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون تھائرائڈ کے فنکشن کو۔ تو اگر تھائرائڈ گلینڈ ہائپو ہے مطلب کم کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچوٹری سے تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کی پیداوار کسی وجہ سے ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہ کیوں بڑھ گئی، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ کسی صدمے کے کسی فکر کے اثرات ہیں، مطلب کوئی دماغی مسئلہ ذہنی مسئلہ ہے، کوئی فکر پریشانی ہے، تو اس کی وجہ سے جب ٹی ایس ایچ کا لیول بڑھا تو اس کے ماتحت جو اس کے تھائرائڈ کے اپنے ہارمون ہیں T3 T4 کیلسیٹونین، تو ان کی پیداوار کم ہو گئی۔ T4 یعنی تھائروکسین کی پیداوار کم ہوگی تو جیسے بی پی لو ہونا، جسم کا فینٹ ہو جانا۔ T3 یعنی ٹرائی ایڈوتھائرونین کی پیداوار کم ہوگی تو اس سے جسم کا میٹابولزم سلو ہو جائے گا، جسم پھولنا پھیلنا موٹاپا شروع ہو جائے گا، سستی آ جائے گی، سلیپ ایپنیا آ جائے گا، نیند پوری کرنے سے بھی نیند پوری نہیں ہوگی، زندگی بیزار ہو جائے گی، یعنی کسی کام کے لیے مریض ولنگ نہیں رہتا۔ وہ خاتون جو اپنے گھر کے کام کرنا ایسے ایک اپنا پیشن سمجھتی تھی کہ میرے گھر کی سیٹنگ، میرے گھر کی صفائی، میرے کچن کے کام، اس کا ایک شوق تھا اور وہ ان کو بہت تیزی سے اور جلدی جلدی کر لیتی تھی۔ اب اس کے لیے اٹھنا اور وہ کاموں کے بارے میں سوچنا بھی تکلیف دہ ہے، بیزاری کا سبب ہے۔ اور اس حد تک بیزاری ہے کہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک پیشنٹ آئیں، وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نا اب اکتا گئی ہوں، حد ہو گئی اب میرا ذہن ہے کہ مجھے بھی مر جانا چاہیے، اگر ممکن ہو تو میرے گھر والوں کو بھی مر جانا چاہیے، یعنی اب زندگی ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ ہے ہائپوتھائرائڈزم کی انتہا کہ پیشنٹ اپنی زندگی سے، اپنے معمول کے کاموں سے، وہ کام جن کو وہ شوق سے پیشن سمجھ کے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے گھر کی ایک خوبی کے طور پہ کرتا تھا، اب وہ کام اس کے لیے اکتاہٹ بیزاری کا سبب بن گئے، اور اب اس کے لیے اٹھنا ہلنا جلنا کام کے بارے میں سوچنا بھی تکلیف دہ ہو گیا۔ یہ ہائپوتھائرائڈزم ہے۔ اور جتنا دماغ ان چیزوں سے اکتاتا ہے اور ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، اتنا ہی جسم سلو ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ مریض کے لیے نیند پوری کرنے کے بعد سارا دن سونے کے بعد بھی یہی شکایت ہوتی ہے کہ میری نیند تو پوری نہیں ہوتی۔ اب ایک جب ماں چھوٹے بچے کی ماں جو ہوتی ہے، اس کے لیے نیند اللہ تعالیٰ نے ایک اس طرح کی کر دی پلان کہ اس کے ہارمون صورت سے زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا بچہ جب فیڈ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے ہارمونز اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان ہارمونز کو ریگولیٹ، یہ ہارمون جسم کو ریگولیٹ کرتے رہتے ہیں۔ مطلب اگر مریض کی نیند جو ہے وہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بھی ہے تو اس کا گزارا ہو جاتا ہے، اس کے جسم کی ضرورت، دماغ کی ضرورت نیند کی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن پیشنٹ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے 8-9 گھنٹے بستر پہ ایک ٹائم سونا ہے، پھر دن میں کو 2 گھنٹے سونے کا موقع بھی مل جانا ہے۔ اس کے باوجود مریض سمجھتا ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی، میری تھکاوٹ نہیں اتری، مجھے نیند پوری کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا، اور وہ نیند پوری کرنے کے چکر میں سارا دن بستر پہ لگا رہتا ہے، اور یہ اس کو خیال نہیں آتا کہ میں روزانہ 20-20 گھنٹے بستر پہ لیٹا رہتا ہوں یا سویا رہتا ہوں یا سوئی رہتی ہوں، بلکہ وہ اس کے لیے کمی کا احساس میں رہتا ہے کہ بچے کی وجہ سے میری نیند ہی پوری نہیں ہو رہی، بچے مجھے بہت زیادہ الجھائے رکھتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں، میرے لیے بہت کام ہے، اور کام وہی ہوتے ہیں۔ یعنی روزانہ کچن کی ہنڈیا روٹی اور برتن دھونے میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 4 گھنٹے لگا لے، گھر کی صفائی میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، 5 گھنٹے۔ اب 5 گھنٹے یہ ہیں، باقی بچے 19 گھنٹے، 19 گھنٹوں میں 8 گھنٹے کی نیند ہونی چاہیے، باقی بچے 11 گھنٹے۔ 11 گھنٹوں میں اگر بچوں کو آپ نے پڑھا لیا، آپ نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں انوالو ہو گئی کچھ ٹائم، 11 گھنٹوں میں کو 2 گھنٹے ریسٹ کر لیا، باقی آپ نے
9 घंटे बच्चों के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में गुजार दिए, बच्चों की चीज़ें बार बार संभालने पे, बार बार बर्तन धोने पे, बार बार बच्चे को सीरियलैक दलिया दूध खिलाने में, तो ये काम है, ये कोई मुशक्क़त नहीं है। आपकी 8 घंटे की नींद पूरी हो गई हुई है, अब आपके जिस्म को नींद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग इस पे इक्तफ़ा नहीं करते। लोग कहते हैं जी हम लेट सोते हैं, अब हम 12 बजे सोए हैं तो हमने सुबह 12 बजे तक सोना है। मर्दों का भी ये हाल है। ख़वातीन कहती है जी हमें तो नींद पूरी नहीं होती, सोने ही नहीं देते। तो मैं बार बार इस पे ज़ोर दे रहा हूँ कि ये एबनॉर्मेलिटी है, इसको ज़िंदगी में पलने ना दें, नहीं तो किसी दिन ये होगा कि आपके मुंह से भी ये अल्फाज निकलेंगे कि अब मेरी ज़िंदगी मेरे ऊपर बोझ बन गया है। आपका अपने काम के लिए उठना, खुद के लिए टॉयलेट जाना, खाना खाना आपको बोझ लगने लग जाएगा, और आप दिल की और सांस की और बहुत पट्ठों की, हड्डियों की, जोड़ों की, मैदे की, बहुत सारी पेचीदा अमराज की मरीज़ बन जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि अपने जिस्म को स्लो ना होने दें। जब आपका जिस्म स्लो होने लगे, आपको ये दिमाग में बात पैदा होना शुरू हो जाए कि अब आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, आप थकी हुई हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज, अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करें, गोश्त का और डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक बढ़ा दें, मीठा कम कर दें, मैदा कम कर दें, और इसके साथ अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें। आपका जिस्म सुस्ती से निकलेगा तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपको रेस्ट की कमी नहीं थी, आपको एक्सरसाइज की कमी थी। तो आप अपने मामूल बना लें कि आपने रोज़ाना घर में 5 मिनट की उछल कूद करनी है, 5 मिनट की वॉक करनी है, सुबह भी शाम को भी, बच्चों के साथ काम पे उनके साथ खेलना है। अपने कामों को वक्त पे करें, कामों को वक्त खुंजा के, वक्त गुजार के, देर करके ना करें। मतलब ब्रेकफास्ट है, बच्चों के स्कूल टाइम में ब्रेकफास्ट करें। आपके जिस्म की ज़रूरत है, आपका जिस्म का मेटाबॉलिज्म तहज्जुद के टाइम का 3 बजे का शुरू हुआ है, कहाँ 3 और कहाँ 7, 4 घंटे आपके जिस्म ने तहलील करके ग्लूकोज निकाला, चर्बी तहलील करके। अब उस ग्लूकोज पे 4 घंटे गुजर गए, आप चाह रहे हैं कि बच्चों के जाने के बाद फिर आप 4 घंटे गुजार लें। 8 घंटे के लिए अगर ग्लूकोज तहलील करके निकाला जाएगा तो आपको 2 साल में शुगर हो जाएगी, 4 साल में शुगर हो जाएगी। शुगर लो रहना शुरू हो जाएगी और कल को हाई रहना शुरू हो जाएगी। जिनकी लो होती है उन्हीं की बाद में हाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है। तो आप अपने आप को फंक्शनल रखें, बंद पड़ी हुई चीज़, बेकार पड़ी हुई चीज़ बेकार हो जाती है। अपना टाइम टेबल लिख के देखें कि आप कितने घंटे चारपाई पे और सीट पे बैठते हैं और कितने घंटे आप खड़े रहते हैं और एक्टिविटीज़ रहती हैं। इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को प्लान करें। 8 घंटे के से ज़्यादा सोना नुकसानदेह है। इसी तरह दिन में 3, 4, 6 घंटे से ज़्यादा बैठना नुकसानदेह है। अब 8 और 6 14 घंटे, बाकी जो आपके पास बचे 8 घंटे वो आपने एक्टिव रहना है। वो डिवाइड एक्टिविटीज़ होती हैं, ये नहीं कि आपने 8 घंटे मुसलसल एक्टिव रहना है, ये डिवाइड एक्टिविटीज़ होती हैं। हो सकता है कि आपको रात में भी उठ के कुछ आधा घंटा काम करना पड़ जाए। तो आप इसको अपने ऊपर बोझ ना समझे, इसको ज़िंदगी की रमक समझे कि इसी से आप सेहतमंद रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कार आमद। हाँ, और फिर मैं थोड़ा सा माजरत इसकी मेडिकेशन की तरफ भी बात कर लें कि इसके पेशेंट भी थायरॉक्सिन और न्यूमरकाजोल और इंड्राल पे डिपेंडेंट होते हैं, कैल्शियम विटामिन डी बहुत ले रहे होते हैं, क्योंकि उनके जिस्म में थकावट और दर्दें होती हैं। तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है एक्टिव होने की। अब आपसे चला नहीं जाता, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, और वो चलना ही आपको ज़िंदगी में दोबारा नॉर्मल कर देगा, असल लाइफ में ले जाएगा। और आप कोशिश करें कि इसके लिए अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, तो जिम ज्वाइन कर लें, अपनी एक्सरसाइज करें, अपने आप को भरपूर एक्टिविटीज़ की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ लेके जाएं, और आस्ता आस्ता अपने जहन से बातें निकालने की प्रैक्टिस करें। अपने दिमाग में बैठी हुई बातें, खौफ, फिक्र, परेशानी, किसी बात का सर पे सवार हो जाना, निकलना ना, और फ़िक्रमंद रहना, सोचते रहना, किसी की बात सुन लेना और फिर उस पे कुढ़ते रहना, उस पे अपने आप को मार लेना, ये ना करें। कोशिश करें कि अगर कि कहीं से कोई सदमे की खबर, बुरी खबर, किसी की परेशानी की खबर आ गई है, तो आप उस पे अल्लाह ताला से उसके लिए खैर की दुआ करें, उसके लिए कुछ सदका कर दें, ताकि आपका ज़हन मुतमईन हो जाए। यानी जहाँ पे आपको यही चीज़ें फ़ायदा देंगी जो आपको दिमाग से निकालने के लिए, आप अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो आपका दिमाग दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप ज़िक्र अज़कार की तरफ, नमाज़ों की तरफ, कुरान पढ़ने की तरफ लग जाएँ। एक तो ये चीज़ें आपको बेहतर करेंगी, दूसरे नंबर पे अपने आप को एक्टिविटीज़ की तरफ, मोटिवेशन की तरफ ले जाएँ। गोश्त ज़रूर खाएँ और दूध ज़रूर पिएँ, दही ज़रूर खाएँ, दूध की बनी हुई चीज़ें ज़रूर खाएँ। इससे आपका जिस्म चुस्त हो जाएगा, थकावट ख़त्म हो जाएगी और फ़िक्र कम होगा। जौ का दलिया रोज़ाना खाएँ, उससे आपका गम फ़िक्र कम होगा। हदीस शरीफ में है,
तलबीना दिल से गम उतारता है और दिल को हल्का करता है। और तलबीना जो है उसको पकाने का तरीका जो है वो 1 कप दूध में 2 चम्मच जौ का आटा मिक्स कर लें और 2 कप पानी चूल्हे पे चढ़ा दें। जब उसको जोश आए तो वो आटे वाला दूध उसमें मिक्स कर लें और मसल के खजूर उसमें डाल दें। इसकी फिरनी सी बन जाएगी, ये भी तलबीना है। ये गरम गरम पीना बड़ा फ़ायदेमंद है। या जौ का दलिया पका के खा लें, वो भी तलबीना जैसा ही हो जाता है। शहद और खजूर से मीठा कर लें। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप उसमें 1 कतरा शहद डाल दें ताकि सुन्नत पूरी हो जाए, उसका फार्मूला पूरा हो जाए। और इस फार्मूले के बारे में डॉक्टर खालिद महमूद गजनवी साहब कहते हैं उस हदीस से जिसमें आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना दिल के जुमला मसाइल का मुकम्मल इलाज है। वाज़े तौर पे कह दिया, जिनकी ज़ुबान वाह्यु यूहा, अल्लाह की वही से जो बोलते हैं, अब उनकी ज़ुबान से निकल गया कि ये दिल के जुमला मसाइल का मुकम्मल इलाज है, लफ्ज़ इलाज निकल गया, तो आप इस पे शक में ना रहें, आप इसको इलाज के तौर पे खाना शुरू कर दें। और खालिद महमूद गजनी साहब कहते हैं कि इसका फार्मूला जो है वो दिल के तीनों तरह के अमराज, मतलब वेज़ोडाइलेटर भी है, बीटा ब्लॉकर के तौर पे, और इसके साथ कैल्शियम एंटागोनिस्ट के तौर पे भी काम करता है। और दिल के मुख्तलिफ अफ़ाल, मतलब दिल के वाल्वुलर डिजीज़ में, वेस्कुलर डिजीज़ में, दिल के मस्कुलर डिजीज़ में, जब उसकी इजिक्शन फ्रिक्शन कम हो जाती है, जब उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, जब वो जो इसका हाइपरट्रॉफी हो जाता है इसका साइज, इन सारी सूरतों में तलबीना फ़ायदा मंद है। तो कोशिश करें इसका इंटेक रखें। इसी तरह मस्कुलर इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए आंवला, मुरब्बा आंवला खाना बड़ा फ़ायदा मंद है, या आंवले का अचार खाना फ़ायदा मंद है, नारियल खाना फ़ायदा मंद है। हदीस शरीफ में इसके बाद जिक्र है सफ़रजल अरबी का, जिसे मुरब्बा बी के तौर पे आप अवेल अरेंज कर सकते हैं। इसका थोड़ा पीस रोज़ाना खा लें। ओलिव जैतून के बेर जो उसका फल है वो एक रोज़ाना खाएं। उसका ओलिव ऑयल जो है एक्स्ट्रा वर्जिन, वो 1 टीस्पून रोज़ाना पीना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें आपको दिल की बीमारियों से, थायराइड की बीमारियों से निकाल देंगी और आप फ़िक्रमंदी से निकलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एलोपैथिक दवाई को छोड़ के कोशिश करें कि नेचुरल मेडिसिन पे, नेचुरल लाइफस्टाइल पे और कुछ स्पोर्टिवली होम्योपैथिक मेडिसिन पे आ जाएं, ताकि आपको दवाइयाँ छुड़ाना जो है वो उसकी प्रैक्टिस हो जाए। और इसी तरह अपनी सेल्फ काउंसलिंग करें, अपने आप को समझाते रहें कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आ गई है तो वो अल्लाह उसको रफ़ा भी कर देगा और उसकी वजह से दर्जात में बुलंदी देगा और उसका इनाम भी दे देगा और उसकी बदले में गुनाह भी बख्श देगा। तो ये अल्लाह का एक तरह से इनाम ही है कि ज़िंदगी में परेशानियाँ आखिरत की ज़िंदगी में इनाम के तौर पे मिल जाती हैं। तो आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार रहा करें और ज़िक्र अज़कार में रहें, ताकि आपके ज़हन से खौफ, परेशानी, डर, फ़िक्र, ये सारी चीज़ें निकल सकें। हाइपोथैलेमस जो है वो रिलैक्स हो जाए, पिट्यूटरी से टीएसएच की पैदावार बेहतर होए और जो थायराइड के हार्मोन है इनकी पैदावार जो है वो अपने नॉर्मल लेवल पे ठहर सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत ही कारआमद बातें बताई और ये हमारे सुनने वाले देखने वालों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी के साथ इस व्लॉग को क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। कोई छोटा सा हमारा मैसेज के 5 वक़्त बाजमात नमाज कायम करनी चाहिए हमें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ के हदिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।